পাহাড়ের শেষবার দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট হয়েছিল সুভাষ খিসিংয়ের আমলে। সেটা 2000 সালের জুন মাসে। 22 বছর বাদে আবারও ফের পাহাড়ে ভোটের দামামা। 22 বছর বাদে ফের পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট। নোটিফিকেশন জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্দেশিকায় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকা ডিলিমিটেশন অর্থাৎ নতুন করে সীমা পুনর্বিন্যাস এবং সংরক্ষণের তালিকা তৈরি করার কথাও বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোটের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান জিটিএর চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা, হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড। গত 26শে আগস্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তারা। পাহাড়ে অন্যান্য দলগুলিও একই দাবি তোলে। এতে পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকাগুলোতেও নির্বাচিত বোর্ড কাজের সুযোগ পাবে এবং উন্নয়নমূলক কাজও হবে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা স্বাগত জানান অনিত থাপা। তারা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত বলেও দাবি করেছেন। স্বাগত জানিয়েছেন হামরো পার্টিও। নির্বাচনের প্রস্তুতিতেও নেমে পড়বে তারাও। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মেলিক এবং কালিম্পংয়ে 4 মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় নির্বাচন হবে। আগে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে একটি জেলা পরিষদ ছিল। 1986 আন্দোলনের পর পাহাড়ি এলাকা নিয়ে তৈরি হয় দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল। 1989 অর্থাৎ 1989 সালে জেলা পরিষদ ভেঙে যায়। গঠিত হয় পৃথক শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। তার আওতায় ছিল সেবক সহ পাহাড়ের কিছু এলাকা। পরবর্তীতে আয়াওন পুনর্বিন্যাস করে সেবক বাইরে চলে যায়। 2011-তে রাজ্যের পালা বদলের পর গঠিত হয় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ। 2012-তে নির্বাচন হয়, ক্ষমতায় আসে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। 2017-তে ফের পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় পাহাড়ে। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসে পাহাড়ে। 10 বছর বাদে চলতি বছরেই জিটিএ নির্বাচন হয়। তার আগে দার্জিলিং পুরসভা নির্বাচন হয়। এখন পাহাড়ের বাকি 3 পুরসভা মিরিক, কার্শিয়াং এবং কালিম্পংয়ের ভোট বাকি। এরই মাঝে 22 বছর বাদে পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন নোটিফিকেশন জারি করতেই উৎসবের আবহ গ্রামীণ এলাকায়। नमस्ते। हामीले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले विगत गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको चुनावमा हामीले रुरल एरियाजमा जति पनि कमान बस्तीका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई एउटा आश्वासन दिएका थियौँ। हामी यदि जिटिए चुनावमा सफल भयौँ भने पञ्चायत चुनावको लागि पहल गर्नेछौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई आश्वासन दिएको थियौँ र त्यो अनुरूप चुनाव हामीले जित्यौँ। अनि हाम्रो मुख्य कार्यपालको कलकत्ता भ्रमणमा 22 तारिक जुलाईको दिन चिफ सेक्रेटरीसित उहाँले यो कुरा राखेको थियो। अनि त्यसलाई फेरि हामीले थप दबाब दिनुको लागि 26 तारिक अगस्तको दिन हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभले एउटा फेरि लेटर राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई पनि लेखी पठाएको थियौँ, पञ्चायत चुनाव गराइदिनुपर्छ भनेर। अनि हामीले पनि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर्स हामी 5 जनाले यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटलाई भेटेर फेरि हामीले त्यसलाई रिइटरेट गरेर मुख्यमन्त्रीलाई लेटर लेखेका थियौँ। एटलिस्ट 2 स्तरीय पञ्चायत भयो पनि हुनुपर्छ हाम्रोमा चाहिँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज खुसीको खबर है, तपाईँहरूलाई त्यसको निम्ति सूचित गराउनुको निम्ति मैले यो प्रेस कन्फरेन्स गरेको। अहिले भर्खर मात्र 1 घन्टा पनि नभएछ हामीलाई यसको कपी आयो र आज वेस्ट बेङ्गल स्टेट इलेक्सन कमिसनले उहाँहरूले आर्टिकल 243K कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया अनि सेक्सन 3 अफ वेस्ट बेङ्गल पञ्चायत इलेक्सन एक्ट 2003 एन्ड रुल 22 एन्ड 24 को अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कालिम्पोङ र दार्जिलिङलाई नोटिफिकेसन नम्बर 5316/PN/0/1A-3/2010 dated 0107/2010 of Panchayat and Rural Development Department ले जुन चाहिँ प्रिपेरेटरी वर्क सुरु गरेको थियो एलोकेसनको, त्यसकै आधारमा कालिम्पोङ र दार्जिलिङ जिल्ला गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पनि डिलिमिटेसनको प्रिपेरेटरी वर्क चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नु भनेर अर्डर दिएको छ र यो अर्डर अनुसार चाहिँ उहाँहरूले सेप्टेम्बर
यस्तो भनेको छ लास्टको पार्ट तपाईँलाई पढेर सुनाइन्छ है देयरफोर द कमिसन फर द अथोरिटिज स्याल टेक अल नेसेसरी स्टेप्स सो द्याट द प्रिपेरेटरी वर्क्स अफ डिलिमिटेसन एन्ड कन्स्टिट्युएन्सिज as mentioned in the foregoing paragraphs are completed by 19th September 2022 and that for the reservation of seats are completed by 26th September 2022 without fail. र यो यति कुरो तपाईहरुलाई अब मिडियाको माध्यमबाट हामीले सूचित गर्नको निम्ति मैले यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको र एउटा खुसीको कुरो अब आज झन्डै लास्ट इलेक्सन 2000 मा भएको 22 वर्ष पछाडी एटलिस्ट 2 टियरको भए पनि दार्जिलिङ 3 हिल्स अफ डिभिजन एज वेल एज इन्क्लुडिङ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा पञ्चायत चुनाव हुने निर्णय अब यो जुन डिलिमिटेसनको अर्डरले बताउँदैछ र म यही खुसीको खबर सुनाउन जुन दार्जिलिङ कालिम्पोङमा टोटल कति सिट छ पञ्चायतमा त ग्राम पञ्चायत 112 वटा हो सिट चाहिँ कतिवटा हुन्छ अब त्यसमा थुप्रै हुन्छ अब यसमा यस्तो त्यसैका लागि त डिलिमिटेसन हो नम्बर अफ सिट्सहरू इन्क्रिज हुन्छ त्यो रिजर्भेसनको रोस्टर मेन्टेन हुन्छ त्यहाँनिर त्यो अल्टरनेटिभ अब त्यो रोटेसनमा अब कुन सिट रिजर्भ बस्छ कुन सिट जेनरल बस्छ त्यो सबको लागि चाहिँ 26 तारिक सेप्टेम्बर र 19 तारिक सेप्टेम्बर 2022 भित्रमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्सन अफिसले चाहिँ कालिम्पोङ एज वेल एज दार्जिलिङ सायद डिस्ट्रिक्ट इलेक्सन अफिस अहिले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले नै गर्छ 80 सालदेखि 2005 देखिको अनवर्ड पञ्चायत चुनाव लास्ट इलेक्सन चाहिँ 2000 मा 2005 देखिको यता चाहिँ भएन तपाईको 5 इयर्स कम्प्लिट तर त्यहाँदेखिको डिमान्ड थियो कि 3 टायर इलेक्सन हुनुपर्छ पञ्चायत भनेर र अब 2 टायर हुँदाखेरि त्यही बेनिफिट पाउँछ पहाडवासीले त्यो यस्तो हुन्छ 3 टियर्स र 2 टियर्समा चाहिँ अब हामी अलिकति त्यो कन्फ्युजन हुनु भएन कि किनभने 3 टियर्सको कुरा निकाल्यो भने फेरि अहिले यो त्यो आर्गुमेन्ट सुरु हुन्छ क्या है त्यसले गर्दा तर अब एटलिस्ट 2 टियर्स भयो पछि 3 टियर्स पनि अब तर मलाई जहाँसम्म लाग्दाखेरि अहिले त्यो 3 टियर्सको ढोका अहिले झट्टै खोलिँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2 टियर्स एटलिस्ट 2 टियर्सको डिमान्ड गरेका थियौँ र आज नोटिफिकेसन पनि अकर्डिङली नै 2 टियर्सको लागि नै उहाँहरूले गरिदिनु भयो पहिले त अब चिफ एक्जिक्युटिभको अब दक्ष अब कुशल नेतृत्वमा है अर्को चाहिँ हामी राज्य सरकारको अब जुन चाहिँ पहल छ यसमा पनि उहाँहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ मिस्टर लामा एउटा प्रश्न के आउँदैछ हेर्नुहोस् त गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको जुन पञ्चायत डिपार्टमेन्ट छ वा गभर्मेन्टको जो इलेक्सन कमिसनको विषय हो जो स्टेट इलेक्सन कमिसन त्यो डिलिमिटेसनको लागि जुन तपाईँहरूको नोटिफिकेसन पाउनुभयो बट यो डिलिमिटेसन मात्रै लास्ट अप्सन होइनन् यसपछि यसको एउटा प्रपोजल बनाएर स्टेट गभर्मेन्टले सेन्ट्रललाई पठाउनु पर्ने किन त्यो दार्जिलिङको इस्यु लिएर केही एक्टलाई एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो पोसिबल हुन्छ तपाईँलाई लाग्छ होइन गर्दैन अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्दाखेरि अब त्यो अघि नै भाइले भने नि 3 टियर्सको क्या 3 टियर्सको कुरो खोल्यो भने चाहिँ फेरि त्यो एउटा के भन्नु त्यो इन्ट्रिकेसिसभित्र हामी नपस्ने त्यसमा पसिरहँदाखेरि नै हाम्रो गाउँको है कमानको जति पनि हाम्रा दाजुभाइहरू वञ्चित भएर बस्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि अब प्र्याक्टिकली चाहिँ 2 टियर्स चाहिँ हुनैपर्छ अहिलेलाई र 2 टियर्स भइदियो भने अब हामीले पञ्चायतबाट जति पनि पाउनु पर्ने सुविधाहरू हामी पाउँछौँ बुझेनौ अब यसलाई कम्प्लिकेटेड नबनाऊ यहाँबाट फेरि फर्दर एक्चुअली राइट नाउ जुन स्ट्याटस छ पहाडको बेसमा हिल एफेयर्स डिपार्टमेन्टमा 1 टायर पञ्चायतको अप्सन छ बट 2 टायर पञ्चायत गर्नुको निम्ति केही रेक्टिफाई गर्नुपर्छ स्टेट इलेक्सन कमिसन त्यो रेक्टिफाई गरेर सेन्ट्रललाई पठाउँछ तपाईँलाई यति चाँडै लाग्छ जो इलेक्सन यस मलाई लाग्छ कि यस्तो हो भाइ अब त्यो लिगल कुरोहरू है स्टेट र सेन्ट्रलको बिचमा हामी परेर त्यो सबै तर्क नगर्ने तर जहाँसम्म लाग्छ केन्द्र सरकारले हामीलाई अरू कुनै कुरो पनि दिएको छैन अहिलेसम्म अघि मात्र पनि यहाँ चर्चा भयो 11 जात गोष्ठीको दाजुभाइहरू आउनुभएको थियो होइन आजसम्म हामीलाई 11 जात गोष्ठीलाई जुन चाहिँ लेफ्ट आउट अब कम्युनिटिजहरूलाई सिड्युल ट्राइबबाट स्टेटस दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि केन्द्र सरकारले अहिले खासै कुनै पोजिटिभ इन्डिकेसन दिएको छैन के कारणले तर पञ्चायत चुनाव चाहिँ मलाई लाग्छ कि केन्द्र सरकारले रोक्दैन भाइ केन्द्र सरकारले रोक्दैन कुनै पनि कम्प्लिकेसन निकालेर स्टेटले जब डिसाइड गरिसकेपछि मलाई हामीलाई आशा छ केन्द्रले कोअपरेट गर्नैपर्छ अनि केन्द्रको कोअपरेसनमा स्टेट गभर्मेन्टसित कुनै किसिमको लगर हेड्स नगरिकन योपालि चाहिँ 2 टियर्सको पञ्चायत हुन्छ जीटीए चुनाव में
हमारे पार्टी के तरफ से घोषणा पत्र में एक प्रमुख मुद्दा पंचायत चुनाव को बनाया था। तो इस मुद्दे को हम लोग फॉलो अप करके मुख्य कार्यपाल जब कोलकाता विजिट में गए थे, उन्होंने मुख्य सचिव के साथ इस बारे में मुलाकात की और उसके बाद 26 तारीख अगस्त को भी मुख्य कार्यपाल ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। तो आज उसका नतीजा निकल गया। तो हम लोग खूब खुशी के साथ आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल ने आज 29 तारीख अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिला में 2 स्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव कराने के लिए उन लोगों ने डिलिमिटेशन का आदेश दे दिया। बस यही खुशी के खबर आप लोगों के साथ बांटने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। जैसे 3 टायर का इतने सालों से 3 टायर का डिमांड था पहाड़ में, इसी के कारण डिमांड से नहीं है 3 टीयर। तो 3 टीयर्स का वो जो प्रोविज़न है वो लास्ट 2011 में GTA का जब अकॉर्ड हुआ था, वहाँ पे उस समय जिन्होंने भी दार्जिलिंग पहाड़ के जितना भी मतलब लोगों के पक्ष में जो समझौता हस्ताक्षर की थी, उन्होंने 3 स्तरीय पंचायत का मांग किया था। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान अनुसार उसमें संशोधन करना था वो नहीं किया। अब इस लफड़े में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। अभी एटलीस्ट 2 टीयर का पंचायत होने से बस हमारा जो रूरल एरिया का हमारा जितना भी लोग है वो लोग अब पंचायत का जितना भी फैसिलिटीज़ है उन लोगों को मिल सके बस। थैंक यू। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477 86365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, Havells, Galaxy, Gem House, beside Uttarban Marwari Bhavan, 2nd mile, Siliguri. Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses: BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।